our template categorized in two different part. We are able to create a template for our virtual machine in two different way. The one is OVF and another is OVF. OVA, OVA and OVF. Yeah, I started. VMware templates management. Okay. So in case of templates management, we should know about the difference between OVF file and OVA file, right? So as per the name suggests, OVA is an open virtual appliance and another is OVF that help us to manage a open virtual file. So the usage, let me explain you about the usage of these two important files. Anything that you want to add in case of OVF and OVA? Mm-hmm. Okay, and what about OVF? Okay, fine. So yes, actually, if we talk about the use case of these two important files, so for example, OBA basically is used whenever we perform the task of, for example, this is our physical machine, right? This is our physical computer that we establish in our organization, and you wanted to convert it into the virtual. ये पहला एग्जाम्पल है, इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे. इफ यू वांट टू परफॉर्म द टास्क ऑफ P2V, ठीक है, यू वांटेड टू परफॉर्म द टास्क ऑफ P2V, फिजिकल टू वर्चुअल. So that time it will offer us two different way. You can convert your machine and put it into the external storage in the format of hard drive. जो हार्ड डिस्क की फॉर्मेट रहेगी वो आपकी किस फॉर्मेट में रहेगी? Windows.OVA. इस केस में जो रनिंग कंडीशन है आपके कंप्यूटर की, मीन्स जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह आपने इंस्टॉल कर रखा है, जो भी ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं, ये आपका एज इट इज़ कंप्यूटर जो है OVA फॉर्मेट में आ जाएगा. यू नीड टू पुट इट इनटू द एनी एक्सटर्नल स्टोरेज लाइक पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव, और किसी भी ESXi में, किसी दूसरे लोकेशन की ESXi में जाकर के इस OVA को क्या कर सकते हैं? डिप्लॉय कर सकते हैं. एंड विद इन मिनट यू विल गेट द सेम कंप्यूटर जो फिजिकल में था वो आपको एज ए वर्चुअल मशीन्स मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? पहला. दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, you have already established the ESXi with same organization. आपने ESXi होस्ट आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रखा है जहाँ पे आप P2V का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं. दिस वन इज आवर physical machine and you wanted to convert into the virtual machine. That time OVF come into the picture. By default you need to install the tool और P2V convert करेंगे ना, तो it will ask you, can you please provide me that information about ESXi. एक तो ऑप्शन आपसे ये पूछेगा कि वेयर यू वांट टू पुट योर OVA फाइल, जिसके लिए आपको अपना एक्सटर्नल स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज का पाथ देना पड़ेगा. दूसरा ऑप्शन, इट विल आस्क यू फॉर द IP एड्रेस ऑफ योर ESXi. इससे बेनिफिट क्या होता है कि यू डोंट वांट टू क्रिएट द इमेज ऑफ योर वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन. यू वांटेड टू डायरेक्टली कन्वर्ट योर फिजिकल मशीन टू द वर्चुअल मशीन. डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं ESXi होस्ट के अंदर. Now is fine. Next,
another important point related to the OVF and OVA. ये तो फिजिकल टू वर्चुअल का एग्जांपल हुआ, बट इफ़ यू राइट क्लिक ऑन द वर्चुअल मशीन दैट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन योर ESXi, और आप ESXi होस्ट को vCenter सर्वर के थ्रू एक्सेस करके if you wanted to make any changes, let me connect my RDP workstation RDP to show you the practical. Okay, we have already installed all the means ESXi and vCenter server. Everything is okay. I'm just going to turn on our vCenter server to perform the practical. I just started our vCenter server. So in vCenter server, जब भी हम राइट क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन के ऊपर, इट विल गिव अस ऑप्शन टू कन्वर्ट आवर मशीन टू द टेम्पलेट. OV एंड OVF टेम्पलेट में ये ऑप्शन देगा VMs को कन्वर्ट करने के लिए. बट क्वेश्चन वाई वी नीड टू कन्वर्ट आवर मशीन इन OVA फॉर्मेट. सो इसका जो प्रैक्टिकल यूज केस है ना, फॉर एग्जाम्पल यू इस्टेब्लिश योर इंटायर VMware इन्वायरमेंट in location of maybe in India, right? You established your entire setup in India location or maybe in Mumbai location. This is our organization that we established, और यहाँ पे हमने multiple ESXi host, and in ESXi we established multiple virtual machine. Now same setup you wanted to set up in different geographical location. The setup which is available in India location, and you wanted to set up your organization or branch in different geographical location like as US, and you wanted to shift entire virtual machine that you created on India location. ठीक है, बिकॉज आप नहीं चाहते हैं कि ये अगेन वी नीड टू परफॉर्म द टास्क, कि सभी एक्टिविटी आपको फिर से परफॉर्म करनी पड़ेगी. यू नीड टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, एवरीथिंग यू नीड टू परफॉर्म द मैनुअली. सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, जो भी आपके पास VMs हैं जिनको आप शिफ्ट करना चाहते हैं US लोकेशन पे, इंडिया में तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आप US लोकेशन में सेम सर्वर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं,
तो that time you need to convert your virtual machine into the OVA template. Convert your VM into OVA template, put it into the external storage. किसी भी external storage में या online storage के थ्रू आप अपने OVA फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूएस लोकेशन पे. Simple, we need to move our virtual machine in remote location, then we can use the OVA. हाँ, यस, वी कैन से दैट. जब हम अपने इस पूरे इन्वायरमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली वर्चुअल मशीन को एक लोकेशन से, एक फिजिकल लोकेशन से दूसरे फिजिकल लोकेशन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सो दैट टाइम वी कैन प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन OVA फाइल. ठीक है. Okay, we successfully turned on our system. Let me check the usage of processor and RAM, because you know that on first login it will consume the lots of space in our memory, lots of space in our system. So I'm just going to open it through IP address of our vCenter server. This is the IP address of vCenter server 192.168.235. Let me show you the procedure to convert our machine from normal machine to OVF or OVA template. थोड़ा सा टाइम लगेगा. No healthy upstream because the consumption of our RAM and CPU is too high, so that's why we are unable to get the information. थोड़ा सा टाइम लगेगा. It will take up to 5 to 7 minutes. जब तक ये हमारा CPU कंजप्शन लेस नहीं हो जाता, 90% या 92% नहीं हो जाता, वी आर अनेबल टू एक्सेस द vCenter सर्वर. थोड़ा सा वेट करते हैं. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लोन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड टेम्पलेट? जो कॉमन क्वेश्चन है. Clone is the exact image, exact copy of or exact image of the virtual machine. ओके. And template acts as a baseline image. It's a master copy or golden image of the virtual machine. Then we can create the multiple VM from the template. एग्जैक्टली. सो Application. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ मास्टर कॉपी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन इमेज वी आर एबल टू क्रिएट n नंबर ऑफ VMs. जो भी हमारी जो 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 हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, एक तरीके का ये एक तरीके की मास्टर कॉपी होती है जिसके थ्रू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट, एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट वी आर एबल टू क्रिएट इट. राइट. ठीक है. सो लेट मी try to access our machine again because the CPU consumption is 97%, 98%. So maybe we are able to access it. So let me try to check. Still is in progress. And today we'll discuss about the vMotion and SVMotion as well. Okay. SVMotion, vMotion complete करने के बाद we'll move ourselves to cluster HADRS की तरफ, and once we complete the part of HADRS थोड़ा सा DB switch and then update the operating system. Means ESXi वर्जन को कैसे अपडेट करते हैं. इस वीक में इतना हो जाएगा क्या? विल ट्राई टू मैनेज इट, क्योंकि ये HADRS की जो प्री रिक्विजिट्स है, vMotion SVMotion की जो प्री रिक्विजिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. मीन बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी इफ़ यू टू कॉन्फ़िगर द HADRS, है ना. फिर 2-3 दिन स्टोरेज लगाना और फिर उन पर ESXi होस्ट को देखना. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स वी शुड नो अबाउट.
I just need to access it. Taking time, so wait. Okay, Pankaj, do you have your own setup ready to use? No, actually मैं ऑफिस पे हूँ इसलिए नहीं है। Sorry? मैं इधर वर्क पे हूँ अभी इसलिए नहीं है। Okay, okay, no problem. Let's wait. Okay, Pankaj, can you hear me? Yeah. Okay, let's talk about the types of what we can say, the types of template. तो दो ESXi हमने इस्टेब्लिश किया, वन इज 17 एंड अनदर इज 165. आई जस्ट चेंज द IP एड्रेस बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ये हमारे नेटवर्क से, मीन्स DSCP ने ऑलरेडी ये सेम IP एड्रेस असाइन कर दिया है, सो दैट्स वाई आई नीड टू चेंज द IP एड्रेस. सो लेट मी कनेक्ट इट अगेन. 1.50 का मैंने IP एड्रेस चेंज किया 1.65 से 165 से. आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट. DC class DC is our data center. Click add host. सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे 192.168.1.165. 192.168.1.165. ठीक है, 192.168.1.165. Provide the user ID and password. So we just need to proceed with the root account. Yes. And we have already discussed about the sysprub command as well, right? Yeah. And we are able to create a clone from one ESXi to another ESXi. एक में क्लोन क्रिएट करेंगे तो वो दूसरे ESXi में हम मूव करा सकते हैं, नो मैटर यू आर यूजिंग द लोकल स्टोरेज. अगर आपके पास लोकल स्टोरेज ही है केवल, तब भी हम आई थिंक अपनी वर्चुअल मशीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? ओनली द रीज़न ऑफ जब भी हम क्लोन या टेम्पलेट की बात करते हैं ना, जब भी हम क्लोन क्रिएट करते हैं या टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, किसी टेम्पलेट के थ्रू वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, तो वर्चुअल मशीन या क्लोन एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करता है, एक अलग फोल्डर क्रिएट करता है जिसमें वो अपने जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं .bmx .bmdk vswp all the files it will create by self. That's why किसी भी शेयर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती इफ़ यू वांट टू सेट अप योर ऑन इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ क्लोन एंड टेम्पलेट. इज दैट करेक्ट? ठीक है, 1.117 we have already successfully added. Let me try to connect our second ESXi host 1.65. I don't know what happened, we are unable to access it. लोकल रिकॉर्डिंग चालू किया है क्या? या इंटरनल रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैंने एप्लीकेशन के थ्रू. ये ब्लर हो रहा है काफ़ी देर से, लेकिन चलेगा. वापस रिस्टार्ट करोगे
Yeah, I started recording through Camtasia. Okay. Okay, let's try to understand about the options that we have. Oh, not able to on network. Okay. 1.17, 1.165. Okay, no problem. Let's try to access in. Let's try to perform the practical with our existing ESXi host क्योंकि हमें templates देखने हैं. Right click on your virtual machine. It will give us option to create a template and we are able to find the option of export OVF, right? Convert into the template and second is export OVF. Export OVF में क्या करेगा? It will give you the option to create your folder, create your drive in format of OVF. So just need to click OK. Test VM. Okay, in advanced feature we are able to find multiple options, like you can proceed with MAC address, or you can proceed with the BIOS, or including if you want to just check mark it, it will create the same. But usually we don't need it, right? Not required because we will execute the sysprop command ना. जब हम sysprop command execute करेंगे तो it will change the all things. ठीक है. And for OVF what you need to do, you need to download one tool. आपको एक tool download करना पड़ेगा which is considered as a vCenter stand alone converter. ठीक है. फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बट इट इज़ अप्लीकेबल फॉर 60 days. आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द सेम पेज. This is the pop-up that help us to open it, but unfortunately we haven't installed it. अगर हमने इंस्टॉल किया होता तो इट विल गिव अस ऑप्शन टू एक्सेस. स्टैंड अलोन कन्वर्टर एक टूल है जिसकी हेल्प से हम आप बेस मशीन को, फिजिकल मशीन को वर्चुअल मशीन यानी OVF या OVA टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इज दैट ओके? ठीक है. बाकी अनदर ऑप्शन, वी टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ क्लोन. And one more point, just wanted to know about the clone as a template to library. So library क्या होता है? जब आप vCenter server के डैशबोर्ड पे जाते हैं तो we are able to find one option called content library. So content library is a place where we can put lots of services, right? आप कंटेंट लाइब्रेरी तैयार कर सकते हैं अपने ISO इमेज के लिए. लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लाइब्रेरी फॉर ISO इमेज. एक कॉमन शेयर फोल्डर की तरह आप इसको मान सकते हैं कि ठीक है, हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज को अपलोड करना चाहते हैं. वी हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन. इस लाइब्रेरी के अंदर आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, आप URL डिज़ाइन कर सकते हैं उस URL के थ्रू इंटरनली, नॉट पब्लिक, नॉट इंटरनेट, इंटरनली इस URL के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. जो भी लाइब्रेरी, जो भी टेम्पलेट आपने बना रखा है या जो भी आपने व्हाट वी कैन से दैट ISO इमेज अपलोड कर रखी है, उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है. सो वी हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन टू यूज़ द लाइब्रेरी. वन इज़ लोकल कंटेंट लाइब्रेरी and second is subscribed
content library. The meaning of subscribed content library, you can share the URL to access your resources. Must need to make it publish if you want to authorize the access of your template, authorize the access of your ISO image विदाउट ऑथेंटिकेशन, तो आप इसको पब्लिश कर देंगे. अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपका एक्टिवेट रहेगा इफ़ यू वांट टू ऑथराइज विद यूज़र आईडी एंड पासवर्ड. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. इसको हम इनेबल कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सेस. नाउ इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर एनी काइंड ऑफ पॉलिसी यू कैन डू दैट. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट. ये लोकल स्टोरेज है, ठीक है, जहाँ पे आपको स्पेस असाइन करना पड़ेगा अपने इस लाइब्रेरी के लिए. तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट लोकल स्टोरेज. अपने पास है 1680 GB के आसपास का. नेक्स्ट एंड फिनिश. हमने एक लाइब्रेरी तैयार की है विद नेम ऑफ ISO इमेज दैट कंज्यूम स्पेस फ्रॉम आवर लोकल स्टोरेज. तो रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है ना कि आप बेस मशीन प्रोवाइड करते हैं, सॉरी शेयर स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द लाइब्रेरीज पर्पस, राइट. वंस यू क्रिएट द लाइब्रेरी इट विल गिव यू द ऑप्शन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, मीन्स आप क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं. अब देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन URL, इस URL की बात कर रहे थे, जेसन फॉर्मेट में ये कोडिंग रहती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस अलग अलग ESXi होस्ट में अलग अलग vCenter सर्वर अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस URL के जरिए आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. नाउ वी आर एबल टू फाइंड VM टेम्पलेट, वी आर एबल टू फाइंड OVF या OVA टेम्पलेट या फिर अदर टाइप्स. तो ISO इमेज है आप अदर्स में रख सकते हो, VM टेम्पलेट है आप इसमें रख सकते हो. तो अभी हमने पहले स्टेप में क्या किया, एक लाइब्रेरी तैयार की. अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो वर्चुअल मशीन है अपने पास, ठीक है, उस वर्चुअल मशीन को टेम्पलेट, उस वर्चुअल मशीन के टेम्पलेट को लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं. इज दैट ओके? राइट क्लिक ऑन आवर वर्चुअल मशीन एंड गो टू द क्लोन एंड yes I wanted to put it into the library. सेलेक्ट जो भी लाइब्रेरी अपने पास अवेलेबल है ना उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. यू कैन जस्ट डिसाइड द नेम. नेक्स्ट select format. So I wanted to put it to the format of OVF and next this is the image. ISO image के नाम से लाइब्रेरी हमने तैयार किया था. select your library and finish. So VM में we don't have a OS. I think इसमें OS नहीं है तो I don't think कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. बट OVA फॉर्मेट में आपकी एज इट इज़ मशीन जो भी OS या ड्राइवर से एप्लीकेशन है ना इसके एक इमेज बन जाती है. तो ये नॉर्मल टेम्पलेट के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है इफ़ यू हैव योर ऑपरेटिंग सिस्टम विद मल्टीपल एप्लीकेशंस. ठीक है. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द लाइब्रेरी जो हमने अभी तैयार किया है. वी जस्ट नीड टू क्लिक कंटेंट लाइब्रेरी ISO इमेज और आप देखिए यहाँ पे OVA OVF ये बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, वो पाथ सेलेक्ट कर दिया. द कैपेसिटी इज जस्ट 200 समथिंग KB बिकॉज वी डोंट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम. इज दैट क्लियर? ठीक है. other libraries that help us to upload our personal data in the sense कि like ISO image की बात कर लें, ठीक है. You wanted to upload your own ISO image, so we just need to proceed with export, select local files, upload files. तो आप as a admin, ठीक है ना, एज ए एडमिन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी ISO इमेजेस हैं, ठीक है, जो भी ISO इमेज हैं रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़ की होगी, सर्वर की होगी, लिनक्स की होगी, मैक की होगी, उन सभी की ISO इमेजेस में रख देंगे ताकि किसी भी बंदे को ESXi किसी भी ESXi होस्ट के ऑनर को इशूज़ ना हो कि विंडोज इंस्टॉल करते समय उसको ISO ढूंढने की ज़रूरत पड़े या अपलोड करने की ज़रूरत पड़े. ठीक है. बिकॉज द लाइब्रेरी इज़ द फीचर ऑफ vCenter सर्वर. अगर आप उस शेयर स्टोरेज के मेंबर नहीं भी हो, ठीक है ना, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर शेयर स्टोरेज बट यू आर अ मेंबर ऑफ vCenter सर्वर, तो आप अपने इस लाइब्रेरी का एक्सेस कर सकते हो. या फिर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है तो आप अपने
मीन्स जो एडमिन है उससे हम डिस्कस करेंगे कि कैन यू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ और URL ऑफ आवर ISO इमेज, सो दे विल हेल्प यू. इज दैट क्लियर? Yeah. ठीक है. सो नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, आगे हम जब अपग्रेड करेंगे, मैनुअल अपडेट करेंगे ना, ESXi 6.5 है हमारे पास, 7.0 पे ले जाना चाहते हैं या 7.0 है 8.0 पे ले जाना चाहते हैं, तब भी लाइब्रेरी विल हेल्प अस. अदर लाइब्रेरी की हेल्प लेंगे, विल अपलोड द ISO इमेज, फिर उसके थ्रू हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे. इज दैट ओके? When yeah, when we create OVF or OVA, this one single file will be generated, or is there any supported file in OVF? OVA में सिंगल फाइल रहती है, OVF में मल्टीपल फाइल्स मिलती हैं. OVF एग्जीक्यूटेबल फाइल रहती है, और जो अपनी OVF रहता है ना, इट्स मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अप्लायंस. ठीक है यहाँ तक? ओके ओके ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. होस्ट एंड क्लस्टर में फिर से आ जाते हैं. विल डिस्कस मोर अबाउट द लाइब्रेरी और जो भी ऑप्शन है उनके बारे में बात करेंगे, बट अभी हम लोग VM को मैनेज कर रहे हैं. तो VM के केस में इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द vMotion एंड SVMotion. तो ठीक है, एज पर द नेम सजेस्ट. जैसे जैसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अभी यूज़ करेंगे, ठीक है ना कुछ VMware नई चीज़ें या एडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द न्यू फीचर ऑफ vMotion एंड SVMotion. इसके पहले की बात करें, अगर हम 6.0, 6.5, 6.5 तक की बात करें, तो vMotion में हमें केवल 1, 2, 3 ऑप्शन मिलते थे. बट अभी 7.0 ऑनवर्ड्स एंड 8.0 में तो कन्फर्म है, नीड टू वेरीफाई इन 7.0, एक और एडिशनल फीचर इन्होंने ऐड किया है vMotion के केस में, रेप्लिकेट टू अदर vCenter सर्वर. चलो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं vMotion SVMotion का. कॉन्फ़िगर vMotion एंड SVMotion. ठीक है, ये दो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली. vMotion एंड SVMotion. I really don't know what happened with this machine. इसी स्लो परफॉर्मेंस के लिए आई फॉर्मेटेड इंटायर थिंग, पूरा सिस्टम मैंने क्लीन कर दिया है. स्टिल आई एम फेसिंग इशूज. आई डोंट नो कि ये टैब का इशू है या फिर मशीन का इशू है. ठीक है. So now vMotion and SVMotion, these features are available in old version of our vCenter server, but latest version of vCenter server can provide a more feature. पहले हम बात करते हैं यहाँ पे vMotion का. तो as per the name suggests, the meaning of vMotion, whenever we send vMotion एक ESXi से दूसरी ESXi में VM को केवल ट्रांसफ़र करना है तो वो vMotion कहलाएगा. एंड सेकेंड SVMotion, we talk about the SVMotion. So as per the name suggests, the SVMotion considered as a, I need to use MS Paint. ठीक है. So talk about the SVMotion. SVMotion as per the name suggest, यहाँ पे हम बात करते हैं vMotion can help us to, SVMotion के केस में क्या होता है, whenever we move the storage, अभी लेटेस्ट की बात करें तो द लेटेस्ट vCenter कैन गिव अस ऑप्शन ऑफ बोथ
एंड साथ ही साथ ये हमें एक ऑप्शन और प्रोवाइड करेगा, टॉक अबाउट द एस बी मोशन। यहाँ पे दो ESXi होस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल वी इस्टेब्लिश 2 डिफरेंट ESXi होस्ट। दिस इज ESXi host 1 and another is ESXi host 2। ठीक है, okay, just give me 1 minute, onenote.com। चल नहीं रही। I'm unable to use it properly. Anyway, let's talk about it. I'll resolve the issue. क्लास के बाद मैं बैठता हूँ इस पर, चेक करता हूँ क्या है। ठीक है, वी मोशन, एस बी मोशन में क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी इस्टेब्लिश 2 डिफरेंट शेयर स्टोरेज। यहाँ पे हमने 2 शेयर स्टोरेज अलग अलग लगा रखा है। ठीक है, ईच एंड एवरी शेयर स्टोरेज कम्युनिकेटिंग विद बोथ ESXi। ये यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, मीन्स वॉइस वर्सा, ये आपस में दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। ESXi होस्ट 1 पे आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, यू क्रिएटेड 1 वर्चुअल मशीन, और इसकी जो फाइल्स है ना वो आपने ESXi शेयर स्टोरेज 1 में रख दी। वी इस्टेब्लिश द फाइल इन शेयर स्टोरेज 1। ठीक है, जब आप VM के साथ कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू मेक अ चेंजेस विद VM बिकॉज द वर्चुअल मशीन्स कंटेन द रैम एंड प्रोसेसर। ये किसका कंज्यूम कर रहा है? इस ESXi होस्ट 1 का। बट जो स्टोरेज है ना वो स्टोरेज शेयर 1 का इस्तेमाल कर रहा है। जब आप केवल ये लोकेशन चेंज करते हो, राइट, जब आप केवल स्टोरेज की लोकेशन को चेंज करते हो, विच इज कंसिडर एज ए SV मोशन। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में। तो अगर आप VM की इन्वेंट्री चेंज करना चाहते हैं, मीन्स यू वांटेड टू चेंज द एक्सेस ऑफ रैम एंड प्रोसेसर, स्टोरेज वहीं पे है और आपने केवल वर्चुअल मशीन की इमेज को, वर्चुअल मशीन को, इसके रैम और प्रोसेसर के यूसेज को क्या कर दिया, आपने रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, सो इन दिस केस इट कंसीडर एज ए V मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे? V मोशन। बोथ मतलब आपने स्टोरेज भी चेंज किया और आपने व्हाट वी कैन से दैट अनदर पॉइंट, स्टोरेज भी चेंज किया और इन्वेंट्री भी चेंज की, तो ये आपका बोथ कहलाएगा। एंड लेटेस्ट फीचर्स में आपको मिलने वाला है एक और ऑप्शन विच इज कंसीडर एज ए vCenter एप्लीकेशन। vCenter replication। द मीनिंग ऑफ vCenter replication आई एम गोइंग टू शो यू। यहाँ पे माइग्रेट पे क्लिक करेंगे VM पे। ठीक है, एक है क्रॉस vCenter सर्वर एक्सपोर्ट। vCenter एप्लीकेशन ही इसको बोला जाता है, क्रॉस vCenter सर्वर एक्सपोर्ट। इस केस में क्या होगा ना कि इफ़ यू हैव अ मल्टीपल ESXi होस्ट, मल्टीपल vCenter सर्वर, ठीक है, और बोथ vCenter सर्वर आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, एक पूरे इन्वायरमेंट से आप VM को उठा करके दूसरे इन्वायरमेंट में, दूसरे vCenter सर्वर, दूसरे ESXi होस्ट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं,
So that time we can proceed with this particular option. Is that okay? ठीक है, तो ये जो सर्विस है वो 6.7 ने इंट्रोड्यूस किया है, और अभी लेटेस्ट जितने भी आपको ESXi आप हैंडल करेंगे इन फ्यूचर 8.0 हो गया, 7.0 हम लोग कर रहे हैं, तो जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेटेस्ट ESXi होस्ट है, वो सभी आपको ऑफर देते हैं टू परफॉर्म दिस टास्क. Can you please repeat it? Cross region, cross vCenter server. Yeah. So cross vCenter server, if we have a two different environment in the sense like as एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही हमने अलग कर रखा है. यहाँ पे एक vCenter सर्वर लगा देते हैं. दिस इज आवर vCenter सर्वर, ठीक है, एंड वी हैव अ मल्टीपल ESXi. एक ESXi होस्ट यहाँ पे लगा दिया, ESXi होस्ट यहाँ पे लगा दिया, ESXi होस्ट यहाँ पे लगा दिया. ये तीनों ESXi जो है वो एक vCenter सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको हैंडल करे, ठीक है. नाउ अनदर vCenter सर्वर वी एस्टैब्लिश इन डिफरेंट लोकेशन. ऑर्गेनाइजेशन वही है, ठीक है, वहीं पे हमने लगा रखा है दूसरा vCenter सर्वर. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अलग से ESXi होस्ट को एक्सेस करे, हैंडल करे. ESXi होस्ट 1, ESXi होस्ट 2, ESXi होस्ट 3, इसके लिए ESXi होस्ट 1 एंड ESXi होस्ट 2, ठीक है. सेम ये यहाँ पे कनेक्टेड है. एंड देन नाउ थिंक अबाउट इफ़ यू क्रिएटेड अ वर्चुअल मशीन. यहाँ पे आपने एक इंस्टेंस बनाया है, वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, यहाँ पे आपने इंस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है. सो नाउ बिटवीन द ESXi जब हम VM का माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, वो vMotion कहलाया, ठीक है. स्टोरेज टू स्टोरेज अगर आपने VMD के फाइल को ट्रांसफ़र किया तो वो आपका SBMotion कहलाएगा. बट आप एक मशीन से, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, इस मशीन को दूसरे इन्वायरमेंट में ले जा रहे हो, तो यहाँ पे ESXi डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा vCenter सर्वर टू vCenter सर्वर. एंड vCenter सर्वर के अंदर जितने भी ESXi होस्ट रहेंगे उसकी लिस्ट ये सेकेंड vCenter सर्वर बताएगा आपको. इज दैट ओके? ठीक है. तो व्हाट वी नीड टू डू टू मैनेज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, टू यूज दिस पर्टिकुलर सर्विस, आपको क्रॉस vCenter सर्वर पे क्लिक करना पड़ेगा. We have option just simple, keep virtual machine on the source vCenter server, perform a clone operation. अगर आपको लगता है नहीं कि मुझे पूरा नहीं ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि माइग्रेट और सिंक्रोनाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट. माइग्रेट का मतलब लिफ्ट एंड शिफ्ट, आप वहाँ से उठा के दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करना चाहते हैं. इट मीन्स दैट यू डोंट वांट टू यूटिलाइज अगेन इसको, उसका यूज़ आपके पास नहीं है, बस यू वांटेड टू शिफ्ट इट, लिफ्ट एंड शिफ्ट. बट अगर आपको क्लोन बनाना है, कीप बीम्स ऑन द सोर्स vCenter सर्वर क्लोन ऑपरेशन, ठीक है. तो इस केस में एक कॉपी यहाँ पे रहेगी, एक कॉपी दूसरी लोकेशन पे चली जाएगी. नेक्स्ट, अब आपके पास जस्ट कॉपी कर देगा ना, जस्ट हाँ कॉपी कर क्लोन बना देगा ऑन सेकंड vCenter सर्वर इन्वायरमेंट. अब आपको vCenter सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. मेक श्योर द प्री रिक्विजिट टू परफॉर्म द क्रॉस vCenter सर्वर रेप्लिकेशन, क्रॉस vCenter सर्वर माइग्रेशन. उसके लिए द प्री रिक्विजिट्स आर, मेक श्योर कि आपका जो vCenter सर्वर है सोर्स पे, उसी vCenter सर्वर वर्जन को आपको डेस्टिनेशन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा. देन यू आर एबल टू डू दैट. प्लस यूज़र ID एंड पासवर्ड, यहाँ पे आप अपना FQDN नेम दे दो या फिर आप अपने vCenter सर्वर का पासवर्ड दे दो. तो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप द IP एड्रेस. vCenter सर्वर की IP एड्रेस हमारी है 235, ठीक है. तो मीन्स जस्ट एग्जांपल. और यहाँ पे आप क्या देंगे, यूज़र नेम. तो यूज़र नेम bsphere.administrator@bsphere.local. आप पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा था, ठीक है. दैट्स इट. और आप क्या करेंगे, इसको लॉगिन के लिए ऑथराइज कर देंगे. सक्सेसफुली कनेक्टेड, क्योंकि हमने कहीं कोई दूसरा सर्वर तो है ही नहीं अपने पास. वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू विद सेम. और जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो अब देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन थी,
डायरेक्ट ESXi का ऑप्शन नहीं मिला, हमें vCenter सर्वर का ऑप्शन मिला, क्योंकि vCenter सर्वर का एक्सेस मिल गया तो जितने भी आपने DC बना रखे हैं, DC के अंदर जितने भी ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखे हैं, उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. इज़ दैट करेक्ट? Yeah. ठीक है. आ, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया. अभी हम लोग लोकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स वाई कोई एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल हुआ है. एप्लीकेशन इन द सेंस नॉट एप्लीकेशन, आप इसको बोल सकते हो कि कुछ एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो जब आप क्रॉस पे करेंगे ना तो कुछ एजेंट ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगे, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे. आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है एंड सेलेक्ट योर स्टोरेज. उस मशीन पे जो डेटा स्टोरेज रहेगा, उस पर्टिकुलर ESXi का जो डेटा स्टोरेज रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वो आप प्रोसीड कर पाएंगे. ठीक है. दिस इज द न्यू फीच. सॉरी. यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन vCenter सर्वर का कुछ मायने रखता है कि सिर्फ हमारे यहाँ सोर्स से ही हमको सब कुछ कॉन्फ़िगर करना है? नहीं नहीं, हम अपनी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अगले बंदे के पास. ठीक है. तो ओनली सोर्स कैन डू दैट. डेस्टिनेशन क्या करेगा, वो आपको अपने क्रेडेंशियल शेयर करेगा, दैट्स इट. हम किसी थर्ड पर्सन को ऑथराइज नहीं होने देंगे कि वो हमारे vCenter सर्वर का एक्सेस ले. गॉट इट? तो जिस बंदे की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे ये VM चाहिए, रिक्वायरमेंट तो उसकी है ना, वो हमसे कि सिर्फ हमारे लिए एक टिकट जनरेट कर देगा कि द वेब सर्वर, द SQL सर्वर दैट यू क्रिएटेड ऑन योर vCenter एनवायरनमेंट, कैन यू प्लीज शेयर द सेम वेब सर्वर विद मी, कैन यू शेयर द सेम SQL सर्वर विद मी. तो उस केस में आप ये इसका इस्तेमाल कर लेंगे. सिंपल. उस बंदे को कल vCenter सर्वर का VCSA का क्रेडेंशियल शेयर करना पड़ेगा. इज दैट ओके? Yeah. ओके कूल. सो ये हो गया vMotion, SBMotion एंड व्हाट अबाउट अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म, है ना? vCenter सर्वर, क्रॉस प्लेटफॉर्म vCenter सर्वर. ये तीनों क्लियर हो गए. Yeah. प्रैक्टिकल के लिए प्रीरिक्विजिट्स आर, प्रैक्टिकल के लिए प्रीरिक्विजिट आप इस केस में vMotion के लिए और SBMotion दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर शेयर स्टोरेज. हमें इसमें इन्वायरमेंट में शेयर स्टोरेज को मैनेज करना पड़ेगा एंड विद द हेल्प ऑफ शेयर स्टोरेज वी कैन डू दैट. सो इज इट पॉसिबल दैट यू कैन परफॉर्म? आप इसको परफॉर्म कर सकते हो? Yeah, I can do that. फाइन. एंड ओके फाइन. ये अपने पास vMotion, SBMotion हो गया. एंड लेट्स टॉक अबाउट द क्लस्टर. व्हाट इज क्लस्टर? इसकी two or more servers can work together and act like one server. Shared resources from one another. What are the benefits? Redundancy, load balancing, Mm-hmm. And fault tolerance as well, right? yeah, क्योंकि क्लस्टर ही वो पर्टिकुलर टूल है, क्लस्टर ही वो पर्टिकुलर सर्विस है जिसके थ्रू हम अपने पूरे इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे वर्चुअल मशीन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इज़ दैट करेक्ट? yeah, कि एक ESXi डैमेज हुआ तो दूसरा ESXi हमारी सभी वर्चुअल मशीन्स को टेक केयर कर लेगा. एक ESXi का यूसेज, प्रोसेसर CPU यूसेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो उस केस में भी हमारा दूसरा ESXi हैंडल कर लेगा, लाइक दैट. सो ये बहुत सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे, बट बिफोर दैट वी नीड टू सेट अप द इन्वायरमेंट. सो
इसको सेटअप करने के बाद वी आर एबल टू परफॉर्म द एंटायर टास्क. आई थिंक इज दैट करेक्ट? Yeah. Okay, so do one thing. Let me configure the entire setup today because I haven't opened my desktop from last 3 days. तो मुझे एक बार फिर से इसको देखना पड़ेगा मेंटेन करके सेटअप रेडी करके फिर कल ये प्रैक्टिकल कर लें अबाउट द क्लस्टर एंड HADRS एंड यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ वी मोशन एंड एस बी मोशन. आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना. शेयर स्टोरेज ऐड करके एस बी मोशन हो पाएगा और वी मोशन के लिए भी आपकी वर्चुअल मशीन शेयर स्टोरेज का मेंबर होनी चाहिए एंड सेम स्टोरेज कनेक्टेड विद बोथ ही ESXi होस्ट. दोनों ही ESXi में आपका शेयर स्टोरेज जुड़ा होना चाहिए. डन.